Good morning, dear students. I am Bharti Kathuria Saigal from the SD Vidya School. Yesterday, we started with the topic of reproduction in human beings. Let's have a quick recap of this topic. So, let's begin. So, in this topic, we'll be discussing about the male reproductive system, the female reproductive system, puberty, menstrual cycle, STDs, which stands for sexually transmitted diseases, and the contraceptive devices. Contraceptive devices are the birth control measures. So, reproduction in general, we have discussed about it already. It is the process of production of new young ones of the same type by the pre-existing living organisms. So, reproduction can be of asexual or sexual mode. We have already discussed about the asexual modes of reproduction, and we have also discussed the sexual mode of reproduction in the flowering plants. Now we are going to discuss about the reproduction in the human being. We have already discussed that during the sexual reproduction, more variations are introduced because one, two parents are involved, and the second things, the gametes are produced, and the gamete formation also introduces variations. So, we also discussed the topics of haploid and diploid. So, gametes, as you know, which are also called as germ cells, are haploid in nature, while the zygote which is formed after the fertilization is diploid, which is very important for maintaining the unique identity of a particular species because the number of chromosomes has to be restored or re-established as we discussed. Now, in sexual reproduction, the offspring gets two set of genes from two different individuals. That's why there are more variations. And these variations which accumulate मतलब जमा होती रहती हैं, बहुत सालों तक जमा होती रहती हैं, ऐसी बहुत सारी variations जिनकी वजह से what happens is what we call as evolution. Next, DNA replication. Again, I'm talking about it because this is a very important question and a very important aspect of reproduction. DNA replication, again, I will tell you, is the process of formation of a new copy of DNA from the existing copy of DNA. So it is the first step of reproduction, whether it is sexual reproduction or it is asexual reproduction. Variations may be introduced because of errors in the DNA copying. This is the only mechanism by which the variations are introduced in the asexually reproducing organisms, but in the sexually reproducing organisms, there can be other reasons that we just discussed. Now let's begin with the topic that we have started, that is human reproduction. First of all, let's understand what is puberty. Now, puberty, as you all know, it is the period in which the individuals attain the sexual maturity. So it occurs about 10 to 11 years of age in girls and about 12 to 13 years of age in boys. It is not fixed. It can vary from individual to individual, but this is general age that we are talking about, 10 to 11 years in girls and 12 to 13 years in boys. So that's the age at which the sexual maturity starts. Now the question comes is, why at this puberty or why at this stage the sexual maturity comes? And the reason will be because of the secretion of the hormones. The testosterone in males and estrogen in females are responsible for the development of the secondary sexual characters which mark the onset of the puberty. Now, changes in voice during puberty. We discussed it. In the boys, the voice becomes deep and the Adam's apple, the larynx that you call the voice box, becomes prominent. The shoulders become broad and the body becomes muscular. The facial hair, the pubic hair and the armpit hair also start growing. In girls, there are changes in girls also. Shoulders and hip become rounded, the voice becomes thin, the breast becomes enlarged, the hair starts growing in the armpit and in the pubic region. Sexual dimorphism. Sexual dimorphism means after the puberty, there is a dye. Dye means two. Morphism means morphology externally. So externally, you can easily differentiate between males and females. This is called sexual dimorphism. Secondary sexual characters. The sexual characters on the basis of which you can differentiate between males and females
is called as the secondary sexual characters. Now let's discuss about the male reproductive system. The male reproductive system consists of the primary sex organs in the males called as the testes. Now there are a pair of testes which are located outside in the skin pouch, outside the abdomen. Abdomen के बाहर है. बाहर क्यों है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि why are the testes located outside the abdomen, या why are the testes located in the scrotum, or what is the function of scrotum. तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास आता है जो बहुत बार आ चुका है, और उसके अंदर एक सिंपल सा आंसर है आपके पास कि टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है स्पर्म्स का, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लगभग 2.5 से लेके 3 डिग्री तक का लोअर टेम्परेचर चाहिए बॉडी टेम्परेचर से. आपको पता है हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37.7, लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें उससे लोअर टेम्परेचर चाहिए. सो इसलिए जो टेस्टिस हैं दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम टू मेंटेन दैट टेम्परेचर. द ऑप्टिमम टेम्परेचर नीड्स टू बी मेंटेन. और यहाँ पर प्रोडक्शन होता है स्पर्म्स का. स्पर्म्स है मेल गेमीट्स, जैसे हमने डिस्कस किया हैप्लॉइड सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो है स्पर्म्स मेल में, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस. टेस्टिस आल्सो प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये मेल हार्मोन है जो कि मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो अभी हमने डिस्कस किए, फेशियल हेयर, दाढ़ी, मूंछ, ये जितने भी कैरेक्टर्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं मेल्स में आफ्टर द प्यूबर्टी, दैट्स कॉल्ड एज द secondary sexual characters, and they develop because of the release of the hormone testosterone. Now vas deferens. Vas deferens क्या है? ये वो ट्यूब है जो कि स्पर्म को कैरी करती है सेमिनल वेसिकल से आगे लेकर. सो सेमिनल वेसिकल जहां से ये रिलीज हो रहा है तो वहां से उसके बाद उसको आगे कैरी करने का काम जो है वो करती है वास डेफरेंस. सेमिनल वेसिकल वो प्लेस है जहां पर स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है. सेमिनल वेसिकल के अंदर ही कुछ ग्लैंड्स है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो ये अपनी सिक्रीशन स्पोर करते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक आपका कि क्या रोल है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का. तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज रिपीटेडली आस्क्ड. तो यहाँ पर फिर से इसका आंसर एक लिख लीजिए कि आपने पास इट्स मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी आल्सो. सो ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं, स्पर्म तो देखिए रिलीज हो रहा है टेस्टिस से. सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड एक फ्लूइड रिलीज करते हैं. वो फ्लूइड पहली बात तो स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. तो जो न्यूट्रिशन मिल रहा है स्पर्म को, दैट इज फ्रॉम द सिक्रीशंस फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड. नाउ पीनस. पीनस क्या है? इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन व्हिच सर्व्स एज द जेनिटल यूरिनरी फंक्शन. अच्छा, अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक आल्सो कॉल्ड द यूरिनोजेनिटल ट्रैक. यूरिनोजेनिटल ट्रैक क्यों कहते हैं? क्योंकि मेल्स के अंदर यूरिनल का जो ट्रैक है वही जेनिटल ट्रैक भी है, क्योंकि वो कॉमन पैसेज है दोनों के लिए कॉमन पैसेज रहता है यूरेथ्रा. तो क्योंकि यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है इसीलिए हम उसे कहते हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद दिस. नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. In the male reproductive system, as you can see, this pouch is called as the scrotum. Inside the scrotum are located the testicles or the testes. In the testes, there is the production of sperm and also the hormone, which is the hormone called as testosterone. Now, after the production of the sperm in these testes, it is carried by this pipe, this tube called as the vas deferens. Now, the prostate gland and the other glands pour their secretions in this tube, and then it is carried through this tube to the urinogenital tract called as the urethra. This penis is the muscular organ through which this pipe crosses. So that's the structure of the male reproductive system. The diagram is to be drawn only from NCERT strictly. Now let's come over to the next topic, the female reproductive system. The female reproductive system consists of the main parts: uterus, fallopian tube, ovary and vagina. Out of this, the ovary are the primary sex organs because this is the organ where the ovum, the female gametes are produced. Like the male gametes are produced in the testes, similarly the female gametes or the ovum, the egg that we call, is produced in the ovary. Ovary में produce होता है. दो ovaries हैं, दोनों ही एक एक fallopian tube के साथ attached हैं. A pair of ovaries है, लेकिन
पेयर ऑफ ओवरीज कभी भी इकट्ठे प्रोडक्शन नहीं करती है गेमीट्स का, ऑल्टरनेट मंथ पर एक एक ओवरी प्रोड्यूस करती है। अब इसका भी रीजन आ जाता है कि व्हाई देयर इज ओनली वन एग प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ फ्रॉम वन ओवरी। इसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि अब इसके साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, आप लोग एनसीईआरटी में से जरूर पढ़िएगा उस पॉइंट को, कि मेल्स के अंदर जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो स्टार्ट ही होता है कब? प्यूबर्टी पर। उससे पहले स्पर्म्स बनते ही नहीं हैं। लेकिन फीमेल्स में एक्चुअली जो एग्स हैं वो बन जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स की फॉर्म में, मैच्योर एग की फॉर्म में नहीं, लेकिन एक प्राइमरी फॉर्म में, इन द फीटस ओनली। जब प्री बर्थ, इवन जब फीमेल चाइल्ड का बर्थ भी नहीं हुआ, जब गर्ल चाइल्ड का बर्थ भी नहीं हुआ, उससे पहले ही द एग्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी। लेकिन वो मेच्योरिटी और वो रिलीज कब स्टार्ट होगा? आफ्टर प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी अटेन हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर ये जो रिलीज है ओवम का स्टार्ट होगा। तो इसके साथ ही अभी एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि क्यों ऐसा क्यों है कि एक ही क्यों रिलीज करती है वो, तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि एक ही रिलीज करती है पर मंथ, जो ओवरी है एक ही रिलीज करती है ओवम, क्योंकि द फीमेल बॉडी हैज बीन डिजाइन्ड टू कैरी टू एकोमोडेट ओनली वन फीटस एट अ टाइम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही फीटस एट अ टाइम को एकोमोडेट कर सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा फीटस के लिए नहीं है। मतलब डुप्लेट्स भी, ऐसा आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होता है, ट्विन्स भी होते हैं जिसे हम डुप्लेट्स कहते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, क्वाड्रपल्स होते हैं, लेकिन दे आर ओनली एबनॉर्मल कंडीशन। वो एक नॉर्मल सिस्टम नहीं है। एक नॉर्मल सिस्टम में फीमेल बॉडी हैज बीन डिजाइन टू accommodate only one fetus at a time. So only one ovum is released by one ovary. Alternatively अलग अलग मंथ में अलग अलग ओवरी रिलीज करती है। अब जो ओवम रिलीज होता है वो फलोपियन ट्यूब के थ्रू कैरी होता है। फलोपियन ट्यूब क्या है? फलोपियन ट्यूब एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके एंड पर क्या मिलते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फिम्ब्रिए, जो कि ये कलेक्ट कर लेते हैं ओवरी। अब इसके साथ ही बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ लिखते हैं वजाइना में, ओवरी में, यूटेरस में। नहीं, वेरी रॉन्ग। द एक्चुअली जो फर्टिलाइजेशन का साइट है बिटवीन मेल एंड द मेल स्पर्म एंड द फीमेल ओवम, वो कौन सा है? वो है फलोपियन ट्यूब। फलोपियन ट्यूब के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगी आपकी? द फलोपियन ट्यूब। इसके साथ ही थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो है यूटेरस। यूटेरस है इन्वर्टेड पियर शेप, पियर मतलब नाशपाती की शेप का, लेकिन इन्वर्टेड है। और ये वो प्लेस है जिसे हम मदर्स वूम्ब कहते हैं, जिसके अंदर जो बेबी है वो ग्रो करता है। मदर के अंदर जो बच्चा जो ग्रो कर रहा है वो कहाँ कर रहा है? वो यूटेरस में कर रहा है। और यूटेरस में से ही प्लेसेंटा के थ्रू वो अटैच्ड है। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा वो डिस्कॉइड स्ट्रक्चर है, वो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो कि यूटेरस की वॉल में एम्बेडेड है, जिसके जो एम्ब्रियो वाली साइड है वहां पर तो है प्रेजेंट विलाई, जिससे कि वो बहुत सारा न्यूट्रिशन उसको लेना है, ऑक्सीजन लेना है मदर से, या वेस्ट को रिमूव करना है। तो वो सारा काम, तीनों चीजें कौन कौन सी? न्यूट्रिशन लेना, ऑक्सीजन लेना, वेस्ट को रिमूव करना, ये तीनों ही काम वो किसके थ्रू करता है? थ्रू द मदर करता है। तो वो किसके थ्रू कर रहा है? थ्रू द प्लेसेंटा कर रहा है। तो बच्चा जो कनेक्टेड है मदर के थ्रू वो है थ्रू प्लेसेंटा विद द uterus which is the mother's womb. अब वजाइना क्या है? वजाइना is the muscular tube like organ जिसमें से sperm pass on करता है, और यहीं से ही बर्थ, चाइल्ड बर्थ भी होता है, इसीलिए हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। cervix is the mouth of the vagina, वजाइना के माउथ को कहते हैं cervix. So just look at the structure of the female reproductive system. यहाँ पर है आपकी दो ovaries, a pair of ovaries जिसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर साथ ही देखेंगे कनेक्टेड है fallopian tube जिसके एंड पर है फिम्ब्रिए, फिम्ब्रिए जो कि ओवम को कलेक्ट करेंगे और यहाँ से ही अटैच हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी fallopian tube में होगी, वहां से स्लिप होकर जाइगोट विल कम इनटू द यूटेरस, यूटेरस में आ जाएगा और यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बनेगा बीच में दोनों के प्लेसेंटा, जिससे मिलेगा न्यूट्रिशन ग्रोइंग एम्ब्रियो को, और वहां से एक्सक्रीशन करेगा, वो ऑक्सीजन लेगा। और यहाँ पर देखिए ये सर्विक्स है विच इज द माउथ विच इज द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इनटू द यूटेरस। सो ये सर्विक्स और वजाइना मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल। तो यहाँ से चाइल्ड बर्थ जब ग्रो कर लेगा, फीटस 9 मंथ्स तक ग्रो करेगा मदर के अंदर, उसके बाद जो बर्थ होगा वो किसके थ्रू होगा? बाय द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। सो अब मेंस्ट्रुएशन क्या है? डिस्चार्ज होता है ब्लड का। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो
तो जो यूट्रस की वॉल थिक हो जाती है एवरी मंथ एट द रिलीज ऑफ द ओवम, उसकी जरूरत नहीं है और वो डिस्चार्ज हो जाएगा, विच इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन।